Okay, Assalamu alaikum. So welcome to lecture 18. I hope all of you are doing well. Today the agenda is we'll discuss recurrent neural networks. We started discussing recurrent neural networks in the last lecture. We will continue from there, looking at the equations and looking at a very simple diagrammatic version of a recurrent neural network. We will then look at one application trying to understand how a recurrent neural network works, and basically discuss a couple of characteristics of the recurrent neural network. And if we have time, we will move on to one of the variations, which is the gated recurrent unit. So I believe the recording has started, right? आप लोगों को कहीं indication नजर आ रही है? Yes, sir. ठीक है. Okay, so let me share the screen then. So is there any question from your side? So any questions? No, sir. No, sir. So we were discussing recurrent neural networks. Okay. So RNN is basically a neural network in which inputs are taken at each time step. And in general, outputs can be taken at every time step as well. So we discussed input as X in the last class and output as Y. Both of these are time series or sequences. And we denoted the sequence using the angle bracket. So the first element in the sequence is X1. Although if you look at the Andrew Ng notation, I'm using those same notations. He wrote this time in the superscript. The superscript लिखना थोड़ा सा मुश्किल है, so I'm just writing it in front of the letter X rather than as a superscript. We use the subscript to denote one training example. One training example. So if I don't write the subscript, then it means that we are talking about just one example, and I don't want to distinguish between different training examples. Okay. So given this notation, our training data set in general would be xi, yi. Okay. Where of course I ranges from 1 to n. N is the total number of training data sets. Okay. Okay. So, sir, by training and number of training data sets, do you mean that the sources of training data, or do you mean the number of times we feed forward and we uh, use backward training? Do you mean that cycle? no, these are distinct training examples. So one training example would be, for example, if you're talking about POS tagging task, one training example would be a sequence I study at lungs. So this is one example for X. Another example could be I ate at McDonald's. So another training example could be we went to school.
So this, in this case, n is 3. So I'm talking about different specific inputs that are available in a training data set. Okay, thank you, sir. The length of the sequence I defined last time was T subscript X. So this is the length of sequence X. And if this is a specific sequence, then length of a specific sequence Xi. Similarly, Ty is the length of a specific sequence Yi. Okay? So in general, X and Y can have different lengths, and those lengths are captured by these parameters Tx and Ty. Okay? So now let's look at the equations for the recurrent neural network. A recurrent neural network has a hidden layer, which is the recurrent layer. Okay, I will explain this later and also show you how it is unrolled later on. Okay, but let's look at this as the recurrent layer, and the output of this hidden layer at any particular time t. So the output is given by A, is defined as some function, activation function of a weight parameter matrix, और उस parametric matrix को मैं qualify कर रहा हूँ with A and X. This is then multiplied by the vector for the element for the input at time t. ठीक है? Plus we also take as input the output from the previous time step of the hidden layer, of the recurrent layer, which we denote by A t minus 1. Okay? And then we of course have the bias B, and I denote this by BA. So the hidden layer you can think of is the one layer which has some number of units, let's say 100. Okay? And that layer की output जो है वो A है. A then would be in general a vector. So this in general would be a vector. Okay? And this is the output at the time step t. Okay? So the output at time step t is given by the input taken at time step t, which is xt, multiplied by fed through the matrix, the parametrics matrix WAX. Plus, in the previous time step, there was some output of this layer. We also feed that into another parameter matrix, which is WAA, and then, of course, plus the bias vector BA. All of this then is passed through the activation function, which is G. In general, for the hidden layer, G is usually the tan H function. In recent times, we also tend to use ReLU, recurrent rectified linear unit, but tangent hyperbolic is still very popular. Okay? So if you compare this with the previous standard neural network, the only difference comes So can you see this highlight? So the only difference is this part. So there was no recurrence of the previous output of the hidden layer. Here we do have this recurrence, and this is the element, or this is the component that is added that I highlighted here. Okay? So this is the difference if you compare it with the standard neural network. Okay? So this is A. Now this A is the output that could then go to the, A is the output of the hidden layer. So this output can then generate an output of the network. But this output would again be at every time step.
So now we have an output y. Since it's an output, I will add a prime here or hat here at time step t. So this is some other function f of w y a multiplied by the output a, ठीक है, at time t, ठीक है, plus by. So this you can think of as the output layer. ठीक है ना, ये आउटपुट लेयर है. स्टैंडर्ड न्यूरल नेटवर्क का जो आउटपुट लेयर होती है वो हिडन लेयर के आपको एक एक्टिवेशन एक मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई होता है, विच इन दिस केस इज WYA, एंड देन यू ऐड ए बायस एंड देन यू अप्लाई ए एक्टिवेशन फंक्शन. अब ये एक्टिवेशन फंक्शन डिपेंड्स ऑन द एप्लीकेशन. If we are doing a binary classification problem, f would be the sigmoid. So sigmoid for binary classification and softmax for multi-class classification. ठीक है. अब इसमें अब पैरामीटर्स क्या हैं पूरे मॉडल के? ऑफ कोर्स यू कैन सी WA(x) है पैरामीटर, WAA है, BA है, एंड देन ऑफ कोर्स WYA है और BY है. So all of these are parameters of the model. ठीक है. So a few things here to note. ये जो parameters हैं, for example W, by the way इन parameters की मैं sizes पहले बता देता हूँ. So let's say our hidden layer is 100 units. ठीक है, इसका मतलब है A का साइज 100 है, ठीक है, B का साइज 100 है, R of 100. So these are in general vectors. ठीक है. B as well as Y. Sorry, Y तो नहीं है, सही है, not Y. ठीक है. Okay, so these are of length 100. So what is the length of WAX? So this is basically X is the input. ठीक है ना. Input let's say मैं कहता हूँ कि हर एक जो हमारे पास input है is 1000. So this would be 1000 by 100 matrix. ठीक है. So WAA is 100 by 100 because this is hidden layer का जो output है वही वापस feed हो रहा है इसके अंदर, A multiply हो रहा है. So this is the square matrix 100 by 100. ठीक है. And then of course WYA would depend on what is the output layer का size. So output layer का size let's say binary classification है तो ये 1 होगा, 1 by 100, और let's say ये multi class classification है K by 100 होगा. ठीक है. So any questions so far? No. Okay, so no questions? No, sir. Okay. So इसमें एक दो चीज़ें I wanted to highlight. एक तो ये था, लेट्स से हमारी ये पार्ट ऑफ स्पीच टैगिंग की प्रॉब्लम है, तो हमारे पास ये x at any particular time, let's say 1, let's say जो हमने पीछे एग्जांपल लिया था, this is the word I, for example, I study at LAMS. So I x2 जो है, this would be for example study and so on. अब these in general would be vectors. ठीक है. और जैसे मैंने ऊपर एग्जांपल कहा, मैंने वो 1000 की लेंथ रखी हुई है, तो दिस कुड बी one hot encoding, or more popularly nowadays they are basically
embeddings. ठीक है, dense embeddings. One hot encoding would be sparse. Dense embeddings would be let's say 300 words, 300 dimensions from word to vec or from glove. ठीक है. So that's one thing. The other thing is, as you input these words in sequence, so you first input, for example, I, and then you input study, and then you input the next word. They all go through the same parameter matrix WAX. So this parameter matrix is shared across different time steps. ठीक है ना? So in this way, you can think of a recurrent neural network to have fewer parameters because parameters are shared. Okay. Similarly, for WAA and for all the others, BA and YA and BY. So all are shared across. Okay. Okay, so let me now try to give you a pictorial view of this recurrent neural network. Okay, so let me try to draw it as a standard neural network but unrolled. So let's say ये जो मैं vertical line draw करूँगा ये layer है, ठीक है ना? So this is my first layer. तो यहाँ मेरे पास जो input आ रही है, of course ये बीच में आपके पास network होगा. Input मेरे पास जो है x at time step 1 for example है, ठीक है? And this would basically be इनपुट में आप समझ लें कि आपके पास a भी आ रहा है previous time step से, which for example would be A0. ये A0 of course is being multiplied with WAA and वो जो आपके पास x था that is being multiplied with W क्या था AX, and then this all gets multiplied with added to the bias, and then you get an output which is आउटपुट इसकी जो होगी वो इसकी आउटपुट जो होगी वो A1 होगी, ठीक है? अब ये जो A1 जो इधर आया है, यू कैन थिंक ऑफ दिस एज आउटपुट ऑफ, लेट्स से स्टैंडर्ड नेटवर्क की बात करें तो ये पहले हिडन लेयर की आउटपुट है. इसमें आपने अब X2 उसी तरह ऐड किया और फिर वही पैरामीटर सारे थे ये दूसरे लेयर के अंदर गुजर रहे हैं, ठीक है? दूसरे लेयर के अंदर गुजरेंगे तो आपके पास आ जाएगा अब A2 के अंदर आप X3 करेंगे उसी तरह जैसा पहले लेयर में किया था, तो तीसरे लेयर पे जा रहे हैं. तो आप जब अनरोल्ड न्यूरल नेटवर्क, रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क को देखेंगे तो वो इस तरह लगेगा, बट हर एक लेयर के दरमियान जो पैरामीटर्स हैं वो सेम है, वो वही वाले हैं WAX, ठीक है, BA, WAA और क्या था BA तो हो गया पहले, और फिर मेरे पास एंड वाला था, एंड वाला मैंने भी बताया नहीं, ठीक है, वो मैं बताता, ठीक है? तो दिस इज हाउ इट्स गोइंग, बट एट ईच लेयर यू कैन थिंक ऑफ कि एक आपकी आउटपुट लेयर भी आ रही है. सो इफ आई erase this and draw it again, let's say ये मेरी एक पहली लेयर थी, तो इसमें मेरे पास या कोई इंटरमीडिएट लेयर थी, तो इसमें मेरे पास जो इनपुट आ रहा है फॉर एग्जांपल x मेरे पास आ रहा है फॉर एग्जांपल t और a t-1, ठीक है ना? अब इसी एक तो एक ये आगे जा रहा है, बट इसी पे जो आउटपुट जो a है, at जो निकली है, ये ऑल्सो एक और लेयर में जाके आउटपुट भी दे रहा है yt.
ठीक है, तो ये मेरी कुछ डायग्राम समझ आ रही है आप लोगों को? आज बड़े साइलेंट है सारे, एनी कमेंट्स? सर वो स्लाइड चेंज हो गई थी तो थोड़ा सा मिक्स हो गया। स्लाइड चेंज हो गई थी? अच्छा, एक सेकंड। तो अभी ये स्लाइड नजर आ रही है? जी सर, ये टाइटल स्लाइड है। तो अभी ब्लैंक होगी? जी अब ब्लैक हो गई है। अच्छा ठीक है, सो लेट मी ड्रॉ दिस अगेन। सो लेट से ये मेरी एक पहली लेयर है, इसमें जो इनपुट आ रही है ये मेरे पास है ए, या कोई टीथ लेयर है ए टी, और प्रीवियस ए टी माइनस वन, तो ये मेरे पास जा रही है और ये मुझे आउटपुट करेगी ए टी। अब ये ए टी आप समझ सकते हैं नेक्स्ट टाइम स्टेप में भी जा रही है, प्लस ये ए टी एक और आउटपुट में भी जा रही है, एक और लेयर है आउटपुट लेयर विच विल गिव यू वाई टी। ठीक है, दैट्स व्हाट आई वांटेड टू हाईलाइट। ठीक है, हर एक टाइम स्टेप में एक नेक्स्ट टाइम स्टेप में भी इंफॉर्मेशन जा रही है, प्लस उस टाइम स्टेप की एक आउटपुट में भी जा रही है, और आउटपुट का ऑफ कोर्स पैरामीटर डब्ल्यू वाई ए है, वाई ए और बी वाई, और नेक्स्ट टाइम स्टेप में जा रही है तो उसके पैरामीटर्स वही हैं, डब्ल्यू ए एक्स और डब्ल्यू ए ए। So in general, you can get an output at every time step. But depending on your application, you can also change this. So there is flexibility. Okay, let's say हर एक टाइम स्टेप पे आपको आउटपुट नहीं चाहिए, तो then you can avoid that or skip that. So any questions here so far? सर ऐसी कौन सी पर्टिकुलर एग्जांपल या रिक्वायरमेंट हो सकती है जिसके अंदर हमें किसी लेयर की आउटपुट नहीं चाहिए होती है? ओके ठीक है, तो एक तो वेरी सिंपल एग्जांपल है वो क्लासिफिकेशन की, लेट्स से सेंटिमेंट क्लासिफिकेशन की। तो sentiment classification is, let's say I like this movie, so this is a sequence, but output मुझे सिर्फ आखिरी लेयर के बाद चाहिए। Once I have read the entire sequence, I, तो जो y जो 4 है ना, सिर्फ वही मुझे चाहिए as output. I don't want the output for y1, y2, y3, or y4 of course would be let's say positive/negative or binary classification. ठीक है, ओके सर। ठीक है ना। तो आप इन जनरल, जैसे मैंने कहा ना, आर्बिट्रेरीली आप डिफाइन कर सकते हैं कि मे बी एवरी लेयर पे नहीं लेना है, एवरी अदर लेयर पे आउटपुट लेनी है, या आप पहले कोई कोडिंग कर लें कि बेस्ड ऑन योर ट्रेनिंग डेटा सेट किस लेयर्स पे आउटपुट आएंगे, किस पे नहीं आएंगे, किस टाइम स्टेप पे आएंगे, किस टाइम स्टेप पे नहीं आएंगे। हेयर बाय द वे लेयर्स का मतलब मेरा यही है कि ईच लेयर इज रिप्रेजेंटिंग अ डिफरेंट टाइम स्टेप। ठीक है, अब वो मैंने एक्चुअली अनरोल्ड दिखाया था आपको, ये अनरोल्ड करके मैंने दिखाया था लाइक स्टैंडर्ड न्यूरल नेटवर्क। ठीक है, सो लेट्स से जी सर। इसका जो इफ वेरी simple way of kind of depicting a recurrent network or a recurrent layer is simply, let's say ये मेरा एक layer है, इसको मैं इस तरह डिपिक्ट कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल यहाँ से मेरे पास जो नीचे से इनपुट आ रही है ये xt है, और ये xt ऑफ कोर्स पैरामीटर्स इसके क्या है, w a x। पीछे से मैं इधर
एक एरो दिखाता हूँ और ये मैं कहता हूँ कि ये ए टी माइनस वन है, और इसके पैरामीटर ऑफ कोर्स क्या थे, डब्ल्यू ए। ये विंडो पे लिख रहा है या फिर क्या हुआ है, गड़बड़ होगी? ठीक है, तो ये हो गया। और फिर इस राइट साइड पे जो हमारी आउटपुट आ रही है, ये ऑफ कोर्स सर ये नहीं लिख रहा। नहीं लिख रहा, क्या मसला भाई, एक सेकंड। अच्छा, तो ये जो है ना खुला होता है, एक काम करता है। ओके, सो ये मेरी लेयर है, ठीक है, तो आप लिख रहा है? जी सर। नहीं लिख रहा रखता, राइट? लिख रहा है। लिख रहा है, अच्छा, कोई इशू इसमें चल रहा है। ओके, तो मैंने कहा ये आपके पास एक्स टी है, ठीक है, और ये ऑफ कोर्स पैरामीटर डब्ल्यू ए एक्स है। जो आउटपुट हो रही है वो मेरे पास ए टी है। सर दोबारा रुक गया। मेरे ख्याल से वो काइंड ऑफ ब्लू रेक्टेंगल बना आ रहा है कोई, आई थिंक उस एक्चुअली पे जा थोड़ा रहा सा है। इशू हो रहा है। मैं लेट मी जस्ट गो बैक टू माय नोट्स। अच्छा, तो लेट मी सी। ओके, आई एम गोइंग टू ड्रॉ इट ऑन द नोट्स। आई होप अब ये नजर आ रहा है, लेट्स से। जी सर। ठीक है, तो ये मेरे पास है एक्स टी, ठीक है, और ये पैरामीटर है डब्ल्यू ए एक्स। पीछे जो आ रहा है इस नोड के अंदर वो आ रहा है ए टी माइनस वन, ठीक है, और इसका पैरामीटर है डब्ल्यू ए। और आउटपुट जो हो रहा है मेरे पास वो ए टी है, ठीक है। दिस कैन गो टू द नेक्स्ट लेयर, एंड देन मेरे पास हर एक लेवल पे इन जनरल मेरे पास एक आउटपुट भी आ रही है विच इज वाई टी, ठीक है, और इसका पैरामीटर ऑफ कोर्स आपके पास है डब्ल्यू वाई ए, ठीक है। ऑफ कोर्स वो बायस का पैरामीटर भी होगा, बी वाई भी होगा। सो यू कैन रिप्रेजेंट इन अ वेरी सिंपल वे, ये फोर इन टू इनपुट्स हैं और दो आउटपुट्स हैं फॉर ईच लेयर, फॉर द रिकरेंट लेयर, ठीक है। ऑफ कोर्स जो y आ रहा है उसके साथ ऑफ कोर्स पैरामीटर डिफरेंट हैं, आउटपुट के लिए जा रहे हैं, और जो अब x और a है उनके पैरामीटर डिफरेंट हैं। ठीक है, सो इज दिस क्लियर? Yes, sir. ओके, सो so let's talk about very briefly about learning, ठीक है। तो हमने इक्वेशंस तो देख ली, और अब आई गो बैक टू ब्रीफली टू माय पीओएस टैगिंग प्रॉब्लम। पीओएस टैगिंग में ऑफ कोर्स आपके पास जो इनपुट सीक्वेंस है और आउटपुट सीक्वेंस है वो सेम लेंथ का है। सो आउटपुट इज obtained at each time step, ठीक है ना। सो उसमें जैसे हमने एग्जांपल कई दफ़ा देख चुके हैं, आई स्टडी एट लम्स फॉर एग्जांपल। तो ये आपके पास x है, ठीक है, और इसका जो
y होगा, I is basically a pronoun, ठीक है, study is a verb और preposition और फिर noun, ये आपका basically y है, ठीक है. And of course when I input x, so when for example जब मैंने start में x1 input किया, which is the word I, ठीक है, जब ये मैंने इनपुट किया तो मेरे पास A1 आया और इस A1 से बाद फिर मैंने Y1 निकाला एंड दिस शुड बी इक्वल टू जो मेरे पास डिजायर्ड आउटपुट था बेसिकली प्रोनाउन, ठीक है. सो ये जो Y मैंने लिखा है इधर, तो ये y प्राइम है, दिस इज द आउटपुट ऑफ द नेटवर्क, ठीक है, और एक्चुअल आउटपुट इज प्रोनाउन व्हिच आई कैन से इज y. सो ideally this difference should not be there, and if there is a difference this is an error, ठीक है. So we have then in a way an error at each time step, ठीक है. In the standard neural network you had an error at the last layer, but in a recurrent neural network, especially for the pure stacking problem where you are getting an output at each time step, you have an error at each time step. So in general you will have an error y prime t, and then you will have a y t at each time step. Both of these should be equal for there to be no error. If there is an error, then this would not be equal, and that error has to be adjusted or corrected by changing the parameters of the model, ठीक है. तो in general जो इसका overall loss बनता है, so there is a loss at each time step, and the overall loss is the sum of losses at each time step, ठीक है. And we would like to minimize, the goal is to minimize the overall loss, ठीक है. So qualitatively this is the idea for optimizing or adjusting a recurrent neural network, and this is the same as in a standard neural network. The only difference now is that the errors are computed at every time step, which as I mentioned before, जब unroll आपने neural network किया हुआ है तो every layer पे आपके पास एक error का term आ रहा है, ठीक है. So any questions here? सर ये y prime t and y t के अंदर क्या डिफरेंस है? जरा फिर से बोले. जी सर, ये y prime t and y t इन दोनों में क्या डिफरेंस है? आप तो की आवाज ना बहुत हल्की आ रही है, जरा ऊंचा बोलना पड़ेगा. जी सर, मैं पूछ रहा था कि y prime t और y t इन दोनों में क्या डिफरेंस है? अच्छा, नहीं y प्राइम तो हमारा न्यूरल नेटवर्क का आउटपुट है, इज आउटपुट ऑफ RNN, ठीक है. YT is the actual value from training data, ठीक है ना. तो जो मैंने ऊपर इक्वेशनें लिखी थी न्यूरल नेटवर्क की, तो जो आउटपुट था वो आप समझ लें कि y प्राइम था, ठीक है ना. Output was y prime, and this was basically some function f of w y a into a t plus b into y, ठीक है ना. तो ये y prime output थी, but at this time step you also the training data में हमको पता है कि actually इसका label क्या होना चाहिए. So let's say y prime
by the way, y prime is a probability. If it's a binary multi-class classification problem, तो वो probability distribution दे रही है over all the possible classes. Softmax है. तो अब हमने एक्चुअल से कंपेयर करना है. एक्चुअल हमारा एग्जांपल जो फर्स्ट पॉइंट था वो प्रोनाउन था. So if there is a difference between the two, there is going to be an error, और वो error पे हमने इसको eliminate करना है through training, through learning. Okay, sir. Thank you. Okay. So the training algorithm for a recurrent neural network is also called backpropagation. ठीक है? Of course, this is backpropagation over time. ठीक है? जो स्टैंडर्ड न्यूरल नेटवर्क का जो हमने थोड़ा सा ओवरव्यू देखा था ट्रेनिंग का, वो भी बैकप्रोपगेशन था, but that was not over time. ठीक है? But if you think of over time as an unrolled neural network, जैसे मैंने multiple layers करके दिखाया था, तो they are kind of very similar. ठीक है? कोई ज़्यादा फर्क नहीं है. There are multiple layers, but those layers represent different time steps. ठीक है? The only slight difference, of course, comes in the loss function. Loss function is now not the loss function at the last layer. It is the sum of the losses at every layer. ठीक है? हर एक layer में एक output आ सकती है. We want to ensure that all of those outputs are correct. And if they are not correct, we would like to adjust the network to do so. ठीक है? So the details of the BP algorithm we would not cover in this course. A little bit of math होता है उसमें. I don't think so it is appropriate. ठीक है? So now let me, any questions before I move on? So let me go back to language modeling. So we had studied this problem of language modeling first as using probability, using a probabilistic model, the n-gram model. And then we also briefly looked at the language model using a standard neural network. And now I'm going to look at the language model using a recurrent neural network. Okay? Remember, language modeling essentially is sequence modeling. We want to predict the next word given the previous sequence of words that we have seen. Okay? So I study at dash dash dash. So what should this dash 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 be? That's what we want to predict. So is it lungs? Is it, for example, UET? Is it, for example, LGS? Is it, for example, some other word that is probably less probable, like DHA, let's say Lahore, and so on. ठीक है ना? तो ये options. So this is the general idea of language modeling. So we want to predict the next word based on what we have seen previously. ठीक है? तो एक recurrent neural network में किस तरह हम करेंगे इसको? Input output क्या होगी हमारी? So input or output is actually, remember हम जब probability discuss कर रहे थे, we said that this was kind of an unsupervised problem. We don't need any label data set. We just need a large corpus of a language, and you can simply use that to learn n-gram probabilities. So इसको हमने थोड़ा सा input outputs में इसको convert करना पड़ेगा हमको, so that we can use it in a neural network. So I study at LUMS, for example. ठीक है? So ये मेरे पास sequence है.
लेट्स से ये मेरे पास इनपुट है, ठीक है। सो x1 आपके पास I है, x2 है एंड सो ऑन, ठीक है। सो जो x1 है, जब हम x1 देंगे हमारा आउटपुट क्या होना चाहिए, y1 क्या होना चाहिए, जब हम I दे रहे हैं हमारा जो बेस्ट आउटपुट है गिवन दिस ट्रेनिंग डेटा सेट क्या होना चाहिए, स्टडी स्टडी होना चाहिए ना, ठीक है ना। तो स्टडी, इफ यू लुक एट द इनपुट इज एक्चुअली x2, right? So y1 is actually x2 and so on. So x2 would be, so y2 would be x3 and y3 would be x4. तो आपका जो ट्रेनिंग डेटा है वो इस तरह बनेगा। So if I want to write it in terms of input output sequences, so I study at LUMS, let's say this is input, output जो होगी इसकी वो study होगी, at होगी और LUMS होगा, ठीक है। Of course there is a lag, वो lag तो हमेशा होगा, starting lag, उसको हम basically देखेंगे कि we just start with a zero vector. ठीक है। So let's say इसको हम रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क में ट्रेनिंग करनी है हमने, तो हम x1 तो हमारे पास है, I की एम्बेडिंग हो सकती है, ठीक है। उसके साथ हमको a0 भी चाहिए। a0 क्या होगा, एट द स्टार्ट जनरली इन मोस्ट प्रैक्टिकल केसेस वी टेक दिस टू बी ऑल जीरोस, ठीक है। रैंडमली भी सेट कर सकते हैं बट यूजुअली इट्स ऑल जीरोस, ठीक है। सो वंस यू हैव इनपुटेड दिस you get an output y prime 1, ठीक है ना। तो ये आपके पास आउटपुट आएगी y prime 1. By the way, this y prime 1 would be a distribution over the entire vocabulary. Softmax लगा होगा because output, it's a multi-class classification problem. So this would be a distribution over the entire vocabulary. It would tell us what is the probability of, for example, study, what is the probability of some other word, LUMS, what is the probability of for some unknown word and so on. ठीक है, ये distribution होगी. And of course we know that जब training की हम बात कर रहे हैं तो we know the actual y which is study. जब I देंगे तो उसका y1 जो होगा वो study होना चाहिए. तो we will compare with that and of course adjust the network accordingly. Training कर लेंगे हम. इसी तरह हम x2 जब देंगे, x2 में of course a1 तो पहले है आपके पास, ठीक है। You will get y prime 2 and this should of course match to, or should be, distribution should match to, or the maximum probability should match to at, the word at. If it does not, there is an error, we like to adjust that during the training process. And so on, we move in this fashion. तो ये basically training इस तरह होगी. Is this clear? Yes, sir. अब एक दफा लेट से आपने नेटवर्क ट्रेन कर लिया, नेटवर्क ट्रेन करने के बाद ऑफ कोर्स सारे पैरामीटर्स आपके पास फिक्स हो गए, WAX आ गया, WAA आ गया, B आपके पास A आ गया, WYA आ गया और BY आ गया. So this is after you have trained, you have learned this. So now you want to use this network to generate language. ठीक है. So how would you do that? Basically अब उसमें इसी तरह ही होगा. So at the start, typically you will have x1, 1,
एंड A0, ठीक है ना। अब A0 तो मैंने बता दिया कि ऑल जीरोस होंगे। X1 क्या होगा इसमें? बिकॉज अभी कोई लैंग्वेज तो शुरू नहीं हुआ। X1 जो होगा ना, ये भी आप X1 को भी ऑल जीरोस ले सकते हैं, जैसे A0 को ऑल जीरोस लिया था, ले सकते हैं। अनदर ऑप्शन कुड बी के आपने एक कोई टोकन डिफाइन किया हुआ है, लाइक end of sentence token. So X1 could be an end of sentence token. So after a sentence ends, of course, a new sentence would start. So X1 would be the representation for the EOS token. वो भी आप कर सकते हैं, ठीक है? Is this clear? तो जब आप ये देंगे तो you will get the first output. So this would of course be a distribution over the vocabulary, ठीक है? So this distribution को फिर आप sample करेंगे according to whatever the distribution is. So you need to sample this distribution. ठीक है, spelling errors आ रहे हैं. Distribution. So you have to sample this distribution and assuming के distribution अच्छी learn होगी है तो it would give us reasonably high probability for the word I. ठीक है? But हमने इसको randomly sample करना है, कुछ हमारे पास word आ जाएगा, let's say हमारे पास D आ गया. D is also another word that is very common at the start of a sentence. ठीक है? अब मेरे पास ये D आ गया. अब जो मेरी next जो iteration होगी उसमें जो मैं X2 दूंगा वो मेरी actually D की embedding होगी, because the previous word is now D. ठीक है? And then of course A1 जो previous output है वो भी जाएगा, and then we'll get Y prime 2. This again would be a distribution which you then sample to get the next word, and you continue in this fashion. And you will continue until you get a token which is the EOS token. Once you get an end of sentence token, so then you can stop. So in this way, you can generate language using a learned language model. And of course, in this case is a recurrent neural network. So any questions? सर अगर किसी सीक्वेंस में हमें कोई वर्ड प्रिडिक्ट करना हो, जैसे आई स्टडी एट लम्स, लेकिन हमारे ट्रेनिंग सेट में लम्स ना हो, तो सर फिर मतलब उसे कैसे प्रिडिक्ट करेंगे? हाँ, so if you don't have any word in the training data set, तो वो तो फिर नहीं predict होगा. Remember training data sets, जो भी आपके पास data set है उससे आपने vocabulary बना ली, ठीक है ना? vocabulary में कोई let's say word नहीं है, it will not be predicted in the output. But उसका जो हमने पहले भी solution देखा था वो ये था कि we add a new token which we call UNK या unknown token. और इसको भी Yes, sir. हम for some words जो less frequent words आ रहे हैं ट्रेनिंग में उसको UNK कर देते हैं हम, और UNK को उस तरह ट्रेन कर लेते हैं. एंड देन आपके आउटपुट्स में भी फिर UNK आ सकता है.
पर अगेन UN के आउटपुट में आने का मतलब ये है कि you don't know this word, which is not desirable. So जब भी आपका कोई सैंपल में या रैंडम सैम्पलिंग करने के बाद UN के प्रिडिक्ट हो रहा है, you just discard that and sample again randomly according to that distribution. You'll get another word and then you can use that word and continue. But let's say lums vocabulary में नहीं है, it will not be predicted in the it will never be predicted in the generated sentence. UN के प्रिडिक्ट हो जाएगा, UN के जब भी प्रिडिक्ट होगा तो आप कह सकते हैं ये लम्स हो सकता है, but it's just like that. You can't do anything about it. Okay, sir. ठीक है ना? So if a word is not in the training data set, it will not be predicted in the generated data set. That's the simple answer. And the way to handle unknown words is to take some words in the training data set and which are less frequent, very less frequent, and replace them with UNK. अब जब भी आपके पास टेस्ट में कोई अननोन वर्ड आता है तो उसको आप UNK से अज्यूम कर सकते हैं, बट UNK प्रिडिक्ट भी हो सकता है. ट्रेन इनपुट में तो आप यूज कर सकते हैं, बट जब प्रिडिक्ट हो रहा है तो विच इज अप टू यू कि आपने इसको रखना है या फिर आप रीसैंपल करके कोई और वर्ड ले लें. ठीक है, इसमें 2-3 चीजें मेंशन देयर. आई होप यू अंडरस्टूड दिस. एंड ऑल ऑफ दिस आर इंजीनियरिंग decisions. They are not really like yes no decisions या black white decisions. Engineering decisions हैं. Okay, any other question? Okay, so we have about 15-20 minutes. So very briefly, I will talk about the vanishing gradient problem, and then we will start with GRU, which probably I'll start in the next class, but मैं vanishing gradient problem का थोड़ा सा introduction दे देता हूँ. So remember when I drew the recurrent neural network as an unrolled network. So you had multiple layers, ठीक है ना? और कितने layers होंगे जितने time steps हैं, जितने time steps हैं. So if you had, let's say 1000 time steps, let's say 1000 word sentence or 1000 word document, so this essentially means that you have 1000 layers in the unrolled RNN. ठीक है ना? So of course एक तो ये है कि हर एक लेयर पे भी एक आउटपुट आ रही है और उधर भी एक एरर है, बट एक एरर आपका 1000 लेयर का भी है. ठीक है ना? So the error at the 1000 layer, backpropagation जो टेक्निक है, has to be propagated back to the first layer. ठीक है? So as a neural network becomes deeper, the error at the end of the network becomes very weak when you move back. ठीक है? और वीक का मतलब ये है कि हमने यूजुअली हमारे पास जो एक्टिवेशन फंक्शन होता है वो टेंजेंट हाइपरबोलिक होता है, रीलू होता है फॉर एग्जांपल, या समटाइम्स सिग्मॉइड होगा. ठीक है ना? So these functions have ReLU actually is better. ReLU मैं निकाल देता हूँ. The tangent, hyperbolic, and the sigmoid, you know that they saturate at the upper level and at the lower level. For example, the tangent hyperbolic becomes 1 at high values and becomes -1 at low values. ठीक है? और बीच में there is a change. So the gradient becomes 0 at high values when its value is 1, when its actual value of the function is 1, and it also becomes 0 at very small values when it becomes -1. तो जब भी gradient 0 होता है, जो
रिमेंबर हमने ऑप्टिमाइजेशन जो करनी होती है, आई थिंक आई मेंशन स्टोकेस्टिक ग्रेडियंट डिसेंट, थोड़ा सा मैंने इंट्रो दिया था आपको उसमें. So parameter W new is basically given at W old plus there is some learning rate parameter eta into gradient of the loss function. So gradient of the loss function, and loss function is made up of all of these tangent hyperbolic functions, activation functions. जब gradient 0 हो जाता है, then there is not going to be any change. Gradient multiplied with 0 multiplied with eta would become 0. W new would become W equal to W0. Okay? So when grade is 0, then W new becomes equal to W old. So parameter has not been updated. So no update. Okay, na? So this typically arises when your neural network is deeper. जो लॉस जो एंड पे था, वो लॉस पीछे जाते जाते वो पहले ही एडजस्ट होता गया, एंड पे लॉस एडजस्ट करने के लिए कुछ भी नहीं रह गया. ठीक है, तो ग्रेडियंट 0 हो गया. So these networks then become unadaptive, especially at the first few layers. So from a language perspective, you can think of an example like जो एंड्रयू एनजी ने भी दी हुई थी. तो लेट्स से इस तरह का एक सेंटेंस है लैंग्वेज मॉडलिंग का. द कैट हु एट ए लॉट ऑफ स्टफ, काफी लंबा सेंटेंस बीच में है, फिर उसके बाद वॉज फुल. ठीक है, तो ये जो वर्ड वॉज है काफी देर के बाद आ रहा है. It is related to this word cat. If this was a plural cats, was would have been were. ठीक है ना? But was or were is very far away from cat. तो ये आपने लर्न करना है. पीछे आपने अपडेट, आपने देखना है कि cat जो पीछे आया है, does it have any impact on the word was or were? तो ये मेमोरी में आपके होना चाहिए न्यूरल नेटवर्क में. But as we illustrated, there is this issue of long dependencies की information retain या carry on नहीं होती in a recurrent neural network because of so many steps in between. So this issue is then called the vanishing gradient problem, that information that is obtained at a particular layer vanishes when you go back to the first few layers. That memory is not retained. The memory that cat is plural or singular is not retained when reach the word was. ठीक है, तो इसको हैंडल करने के लिए रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क कुछ वेरिएशंस हैं जो हम नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे. I just mention their names. One is the GRU, which states the gated unit or network, and the other is LSTM, which is a long short-term memory network. Long short-term memory. Okay. So we will, I think, introduce this next class. Okay. So any questions so far? सर अगर एरर ओरिजिनेट ही स्टार्टिंग लेयर्स से हुआ है और वो प्रोपेगेट होता हुआ नेक्स्ट लेयर्स में जा रहा है, तो सर वो स्टार्टिंग लेयर वाले पे मतलब क्यों वैनिश हो जाता है? मतलब जहाँ से एरर मतलब स्टार्ट हुआ है उससे पहले ही, मतलब अगर हम बैक प्रोपेगेट करते हुए जाए वहां पर, तो सर उससे पहले ही मतलब ग्रेडियंट क्यों वैनिश हो जाता है?
लर्निंग रेट ग्रेडियंट बहुत जो है, ज्यादा होता है। हाँ जी, ग्रेडियंट एक्चुअली ना, इसको थोड़ा सा इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड इट फ्रॉम ए मोर टेक्निकल परस्पेक्टिव, वो इक्वेशंस आपको देखनी पड़ेंगी। टिपिकली होता क्या है कि एट द लास्ट लेयर, जो लास्ट लेयर है, लास्ट लेयर में आपके पास एक्चुअल वाई भी होता है और वाई प्राइम भी होता है, ठीक है ना। यू हैव जी द सर। एक्चुअल आउटपुट एंड द आउटपुट ऑफ द नेटवर्क। इन दोनों का जो भी एरर है, इसकी बेसिस पे आप एडजस्ट करते हैं इस लेयर के पैरामीटर्स, ठीक है। बट जब जी आप इससे पिछले लेयर पे जाते हैं, आपके पास उस लेयर पे y नहीं होता है, आपका इस y माइनस वाई प्राइम का जो कंपोनेंट रह गया है वो होता है सिर्फ, ओके। ठीक है ना। इस तरह आप और भी पीछे जाएंगे तो अब कुछ चीजें और भी एडजस्ट होगी होंगी, तो जो बकाया बकाया कंपोनेंट रह गया वो रह जाता है। मतलब ये है कि जो कंपोनेंट एडजस्ट करने वाला खत्म हो जाता है एज वी गो बैक, पहले ही वो एडजस्टमेंट हो जाती है उसकी। सो इन द सेंस ऑफ मेमोरी, अब जब आप पिछले लेयर्स पे पहुंचते हैं, लेट्स से मैं 10 लेयर्स की बात करता हूं, तो जब आप 2 और 3 लेयर्स में पहुंचते हैं, सेकंड लेयर पे नहीं पता होता कि एरर क्या था जो एंड पे आया था, बिकॉज उस वक्त तक वो एरर खत्म हो गया होता, ठीक जी है ना। सर। सो फ्रॉम ए, यू कैन से न्यूरल नेटवर्क या बायोलॉजिकल न्यूरल नेटवर्क पर्सपेक्टिव, मेमोरी उसकी खत्म होगी हुई है। सो it doesn't know what has happened there, and as such it cannot adjust accordingly. ओके सर। Okay, any other question? Any questions? Okay, so I think I'll probably stop here, but I would like to get your feedback in terms of connectivity and overall experience from every one of you in terms of ये जो live हम sessions करते हैं। कुछ emails मुझे आई थी कि नेटवर्क इश्यूज की वजह से हम ज्वाइन करना हमारे लिए मुश्किल होता है, पर एटलीस्ट आप जो लोग 16 लोग मुझे नजर आ रहे हैं, in general can you hear and see things nicely या कोई इश्यूज होता है? सर Yes, sir. ठीक होता, कोई मेरी साइड पे तो कोई इशू नहीं आता। ठीक है, जी सर, कोई इशू नहीं होता। तो इसका मतलब है कि Fine from my side as well. फिर से बोले। ठीक है, तो इज देयर एनी लैग एज वेल? मतलब जिस तरह मुझे अब समझ आ रही है, इज प्राइमरीली ए फैक्टर ऑफ योर इंटरनेट स्पीड। माय इंटरनेट स्पीड मेरे ख्याल से इज स्टेबल, थोड़ा सा मैंने अपग्रेड किया था रिसेंटली, बट आल्सो एट योर एंड। तो जिसकी इंटरनेट स्पीड का इशू है या उसकी रिलायबिलिटी का इशू है, तो उसको फिर इशू आएगा। तो मेरे ख्याल से अभी मेन इशू यही लग रहा है मुझे, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन। यस सर। सर कभी अगर इंटरनेट अनस्टेबल होता है तो आपकी वीडियो थोड़ी सी वो करती है, मसला करती है, अदरवाइज कोई मसला नहीं होता। ऑडियो में कभी मसला नहीं होता। ठीक है, ठीक है। सर ऑनलाइन लेक्चर्स में इतना इशू नहीं होता, लेकिन अगर हम कंसिडर करें ना कि हमने ऑनलाइन क्विज देना है, तो वो इतना रिलायबल नहीं लगता, क्योंकि हमारे पास 10-15 मिनट का टाइम होगा और उसमें हमने अगर क्विज अटेम्प्ट करना है और अगर उसके दरमियान किसी का कोई इशू आता है तो वो थोड़ा प्रॉब्लम होगी। आप लोगों ने अभी सर तक हाँ, ये किसी का मसला हो क्विज सकता किया है। इस तरह का? मैंने अभी आपको देना है इस वीकेंड तक। यस सर। सर एक सर कोर्स का दूसरे किया था। कोर्सेज के हमने दिए हैं, तो फिर उसमें आइडिया हुआ है, काफी बच्चों का इंटरनेट का इशू था और उसमें टाइम भी सर वो काफी कम कंप्लीट था। भी नहीं हो पाया। हाँ हाँ तो जी, क्या था, और सर एक हम तो ये यूज कि टू जो भी नहीं है। आपको टाइम दिया जाता है वो ज्यादा कर दें, लेट्स से 30 मिनट्स कर दें, और 10 मिनट्स का क्विज हो तो सर, फिर। हाँ उससे भी कोई फायदा होगा। सर क्विज़ को सर कुछ कोर्सेज में सर एक क्विज दो दफ़ा होके कैंसिल हो गया इन इश्यूज की वजह से। सर क्विज़ को होमवर्क में कन्वर्ट कर दें और एक पूरे दिन की डेडलाइन दे दें, सर उससे फ़ायदा ये होगा कि होमवर्क में थोड़ा लर्निंग एस्पेक्ट भी ज़्यादा होता है।
मतलब जो मैंने 2 या 3 क्विज लेने थे छोटे छोटे, मैं होमवर्क्स बना दूं जैसे अच्छा वो कल दूसरी क्लास थी, आपकी यस नहीं सर। थी, ठीक है, तो विच सर ऑफ उससे ज़्यादा कोर्स फ़ायदा हो जाएगा। सर उससे ज़्यादा एक तो फायदा पूरा होगा। दिन हमारे पास होगा। यस सर। पर उसमें फायदा तो शायद होगा, बट द ओनली इशू देन वुड बी कि मुझे असेसमेंट में इशू होगा, और आपके लोगों के लिए भी होगा कि देयर वोंट बी एनी स्टैंडर्ड डिविएशन, all of you guys will be doing essentially the same thing. सर तो वो कोर्सेज़ में अभी यही कर रहे हैं कि अभी स्टैंडर्ड डेविएशन तो खास नहीं बन रही, तो सारे कोर्सेज़ में अभी यही हो रहा है। हम्म, तो ये बस एक चैलेंज है। लर्निंग तो मेरे ख्याल से शायद हो जाएगी, और ये लर्निंग भी वो उसकी होगी जो हिमसेल्फ इज, कह लें कि इज ईगर टू लर्न। और समवन हु इज नॉट ईगर टू लर्न, वो तो खैर किसी का कॉपी करके दे देगा, उसकी तो कोई लर्निंग नहीं हो रही। और असेसमेंट में ऑफ कोर्स उसको भी उतने ही मार्क्स मिलेंगे जितने उसको मिलेंगे जिसको जो ईगर टू लर्न था। तो ये जो एक डिवाइड है ना, इश्यू है, इसको हैंडल करने का कोई तरीका नहीं मिल रहा। तो फिर आप क्विज ही कर लें, लेकिन आप उसमें टाइम थोड़ा ज्यादा कर दें, 10 मिनट ज्यादा सर थोड़ा दें। MCQs बेस्ड या कुछ इस तरह का कर ले जिसमें इतना ज़्यादा टाइम ना लगे अगर इंटरनेट का मसला भी हो तो। हाँ, मेरा तो इरादा एमसीक्यू बेस्ड ही था, बट उसमें ऑफ कोर्स वही होता है कि एमसीक्यू बेस्ड वुड जस्ट चेक योर, कह लें कि बुकिश नॉलेज, या व्हाट यू हैव लर्नड ड्यूरिंग द लेक्चर और मे बी इन योर रीडिंग। तो या छोटा मोटा मैक्सिमम कोई छोटी मोटी स्मॉल कैलकुलेशन करके उसका आंसर जी मैं सर। आपसे ले सकता हूँ। सर हाँ इस तरह का भी। जो एनीवे मेरे ख्याल से ये वाला तो मैं आपसे क्विज फॉर्मेट में ही लूंगा। जो नेक्स्ट है, जो सेकंड प्रॉब्ली द लास्ट वन, वो मैं देख लूंगा कोई उसका कोई डिफरेंट फॉर्मेट में ले लूँ मैं, जैसे आपने पहले सजेस्ट किया कि होमवर्क टाइप का दे दें। तो ये क्विज कब लेंगे आप? ये आपने नाम से भी वीकेंड पे आपने कहा था ना, तो किस दिन स्पेसिफिकली? स्पेसिफिकली कल आप कहीं एक्सपेक्ट कर सकते हैं अवेलेबल हो जाएगा, तो आपके पास 2 दिन होंगे। उन 2 दिन में आप किसी वक्त भी अटेम्प्ट कर सकते हैं, 2 या 3 दिन मंडे तक। राइट राइट सर। और सर सर सबमिशन इसकी वन टाइम होगी या मल्टीपल, या एक दो मर्तबा कम से कम कर सकते हैं हम सबमिट इस क्विज को? अभी तो मैं वन टाइम का ही सोच रहा हूँ, बिकॉज दीज वोंट बी वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चंस। सिंपल जैसे कहना एमसीक्यू, या शॉर्ट कोई वेरी शॉर्ट टाइप ऑफ क्वेश्चंस। राइट सर। तो अगर वो इंटरनेट डिस्कनेक्ट हो जाता है तो फिर उससे वो मतलब रीसबमिशन की जरूरत पड़ती है? आई LMS डोंट पर नो खुद ही सबमिट हो जाता आई है। डोंट नो एक्चुअली। तो इंटरनेट वाकई डिस्कनेक्ट किसी का बीच में हो गया तो वो फिर आई डोंट नो, मे बी वो रीटेक कर ले, मुझे सबमिशन बता का तो देगा। एक एक्सप्लिसिट, आमिर सबमिशन का तो एक सेपरेट बटन होता है ना, वो आपको प्रेस करना पड़ता है सबमिट होने के लिए, अदरवाइज वो तो सेव स्टेट में रहता है। सर उसका इशू ये है कि वो टाइमर चलता रहता है क्विज का, अगर आपका नेट डिस्कनेक्ट हो भी जाए तो। हाँ, वो तो चलता रहता है, सही है, हाँ वो तो पता है मुझे। नहीं, बट लेट्स से आपने शुरू किया हुआ है, टाइमर चलता रहता है, तो वो उसकी मुझे इंडिकेशन मिलेगी कि इस बंदे ने शुरू तो किया हुआ था, किसी वजह से वो सबमिट नहीं कर पाया, तो मैं उसको अलाउ कर सकता हूँ बाद में। नहीं सर, उसकी इंडिकेशन तो नहीं है उस तरह से। अच्छा, वो बच्चे यूजुअली मेल ही करते हैं सर को कि हमारा डिस्कनेक्ट हो गया था, तो फिर वो अलाउ करते हैं किसी तरह से। अच्छा, ठीक है, फिर इसी तरह हम भी देख लेते हैं। फिलहाल इतनी बड़ी क्लास तो नहीं है ये। सर अगर कोई इशू हो जाता है तो सर उसकी पॉलिसी क्या होगी? आई मीन उसे दोबारा अटेम्प्ट मिलेगी या उसके पुरानी क्विज़ की एवरेज लगेगी? आपकी बात वैसे पूरी समझ नहीं आई मुझे। सर मैंने कहा अगर इशू ऐसा हो जाता है तो उसे आप एक्स्ट्रा अटेम्प्ट देंगे बाद में, या क्योंकि क्विज़ तो उसने एक दफ़ा देख लिया होगा तो वो आई मीन दूसरों के लिए अनफेयर ना हो जाए, तो क्या उसके पुराने क्विज़ की एवरेज लगा देंगे आगे? नहीं, मेरे ख्याल से एक्स्ट्रा अटेम्प्ट की ही बात करेंगे हम उसमें। प्रोबेबली जो मैं अभी भी सोच रहा हूँ, वो मैं आपको वो क्वेश्चन पूल तो थोड़े से ज़्यादा होंगे, और फिर रैंडम मैं उसमें से एक स्मॉल सेट दूंगा। ठीक है।
Okay. Anything else? नो सर। नो सर। चले फिर आई थिंक वी कैन स्टॉप हियर। बाय द वे एंड्रू एनजी की मैंने वीडियोस अपलोड कर दी थी, वो भी आप देख लें। आई एम काइंड ऑफ मोर और लेस फॉलोइंग वही जो उसने कर रहा है, वो उसी को मैं फॉलो कर रहा हूँ फिलहाल। ठीक है सर। ठीक है, उसको आप काइंडली देख लें। जी सर। ओके सर एक क्वेश्चन है बस लास्ट। जी। सर क्विज का डिफिकल्टी लेवल क्या होगा, मतलब जो क्लास में क्विजेस होते थे एज कंपेयर टू देम? मुझे भी नहीं पता है, but मेरे ख्याल से उसी तरह ही होगा या उससे थोड़ा सा सिंपल होगा, बिकॉज जो मैं अभी तक देखा है टेस्ट एंड क्विज़ेस का, मोस्टली तो वो कहना चाहिए एमसीक्यूज को ही फेवर कर रहा होता है, तो मुझे उस तरह के ही बनाने पड़ेंगे। तो मेरे ख्याल से तो सिंपल ही होगा, एज लॉन्ग एज यू हैव टेकन द लेक्चर्स और लिसन टू द लेक्चर्स एंड डन सम बेसिक रीडिंग, यू शुड बी फाइन, कोई इशू नहीं होगा। सर अगर जैसे क्वेश्चन हमारे क्लास में होता था ना कि हमें कोई कैलकुलेशन करके कैलकुलेशन लिखनी भी है और फिर उसका आंसर भी लिखना है, तो वो एलएमएस में जब टाइप करते हुए थोड़ा इशू होता है क्योंकि हम वो उस तरह से प्रैक्टिस नहीं होती है। तो अगर आप इस तरह का क्वेश्चन दें भी तो अगर हम सिर्फ आंसर ही लिख दें तो फिर आप इस तरह कर लीजिएगा कि हम सिर्फ उसका आंसर ही कर लें, आंसर ही लिख दें, कैलकुलेशन हम रफ वर्क में कर लेंगे। हाँ, मैं इस तरह क्योंकि उसको पूरे सोच रहा था इसी के बारे में, बिकॉज दैट इज समवट ट्रू। आंसर ही ले लूंगा, बट उसमें एक वो वही बात है, एक लर्निंग पर्सपेक्टिव मिस हो जाता है, बिकॉज व्हेन आई सी समवन डूइंग समथिंग इन अ डिफरेंट वे, आई अंडरस्टैंड कि उसका थॉट प्रोसेस क्या है। तो एनीवे, तो ये अब उसी तरह ही होगा मोस्ट लाइकली। ऑल्दो फॉर ए पर्सन लाइक मी, मुझे तो इशू नहीं होता टाइपिंग का, बट आई सस्पेक्ट कि आप लोगों को होगा, and especially for someone who is kind of logging in using a mobile device like a mobile phone, तो टाइपिंग मुश्किल होगी। ठीक है, तो ये कंसिडर कर लेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, एनीथिंग एल्स? Okay, so I'm kind of stopping the meeting now. सर Okay, जी सर आपसे रिक्वेस्ट करनी थी कि जो लेक्चर की वीडियोस हैं जो 16 और 17 की, वो भी अपलोड कर देंगे। कौन सी वाली वीडियो? सर आपने ऑडियो अपलोड की हुई है एलएमएस के ऊपर, वीडियो भी कर दिएगा लेक्चर 16 और 17 की। वीडियो? मैं अब YouTube पे कर रहा हूँ। अच्छा ठीक है सर, ठीक। YouTube का लिंक नहीं देखा आपने? सर मैं देख लेता हूँ। YouTube पे कर रहा हूँ, आप अनाउंसमेंट में देख लें, या YouTube की चैनल है वहाँ चले जाएं तो वहाँ अवेलेबल है सारी। ठीक है सर, थैंक यू। ठीक है, चलें जी, फिर अल्लाह हाफिज।